This call is now being recorded. All students should write their name in the chat box so that their attendance will be counted. This is our first practical. In this, you can see what we have done throughout the semester. This design of steel structures. So first, I will show you the total turnover what you have to do, and then based on the roll call, we'll make a batches of 4 students in each group, and then we will assign the work to the student, and they should complete the work as per your batch. Okay, and some sheets are there are you have to draw individually, and some work you have to do in the groups. Very good morning to all of you. I am Professor Nami Dakkar from Department of Civil Engineering. This, your subject is design of steel structure lab, and subject code is nothing but 301009. Okay. So subject code for theory is different, and subject code for practical is different. So you have the you know that this prac- practical subject, that is design of steel structure lab, as having uh, 2 credits. How many credits are there? 2 credits are there. All the boys, I request you open your camera because I want to see you one by one. I will take your name. First, Adnan Ahmed. Adnan Ahmed. All students, they should open their camera, please. Show me your pen and paper. You are sitting with the pen and paper. Adnan Ahmed. Otherwise, I will remove. Okay, don't force me to take action on you. I'm sorry, Zed. Sir, Yes, open your camera. Okay. Ghulam Hussain Pinjari. Just open your camera, show me the pen and paper you are sitting with. Ghulam Hussain Pinjari. Okay. Preeti. Okay. Shambhunath Mughal. Shambhunath Mughal. Then Shuman Kakad. Suman
Shubham, kindly show your camera. You are sitting with the pen and paper. Show me. देखिए ये मजाक नहीं हो रहा है, आप लोगों सीरियस लीजिए. This lab design of studio structure lab is the external will come to assess all your work. I will just maintain the work, your assessment, and in place in front of you. Then he will ask question to you, and then your overall assessment will be done. So if you will do the regular work, regular assignment, your regular project work, your mini project work, regular your sheets you will shown to me, then only I will give good remark or I will do your assessment. And for assessment, it is necessary that you should join the Google Classroom. Otherwise, I will not do your assessment because all the sheets, if this condition is exists, that is pandemic situation, if your regular classes will not start, then you have to upload all the work on the Google Classroom only. Then only your assessment will be considered. Students, those who are here taking lightly about our talk, what we are saying to you, you are not following the instruction, they will yani, definitely bear the consequences. Okay? So we are not responsible for that. Your own, your attendance, your assessment, your regularity only will okay, those you are already shown me pen and paper, they will switch off your camera. Other Adnan Ahmad, Ahmad Saudagar, show me you are sitting with the pen and paper. Gulam, Hussein Punjari, Muhammad Ibrahim, Sambhunath Mughal, Shubham Kakad, Tushar Gauli. Otherwise, I will remove you from the class. It shows that you are not sitting with your mobile, other one is sitting. I will remove you. Yogesh Sindhe, Ziaul Samad, all. When you open the camera, then I will go forward. Okay. This recording is, and I'm many times calling your name, but still you are not opening your camera. Show me you are sitting with the pen and papers. And from next practical, you should sit with the mini drafter attached with your drawing board, your sheets. You should sit with that. This practical class at your home, you have to complete the task. Okay. Ahmed Sodagar, open your camera. Adnan Ahmed, if you are not listening, then I will remove you. You have to open your camera and show me. You are sitting with the pen and paper. Please. If you have any problem, then you talk at least. Adnan Ahmed, I will remove you. एक बार रिमूव करूंगा तो ये मीटिंग आप ज्वाइन करने नहीं पाओगे. अदनान अहमद, हेलो. अहमद सौदागर, अहमद सौदागर, show me you are sitting with pen and paper, please. Ansari Yasir,
Ansari Zaid. You already saw, है ना? Ghulam Ansari, Ghulam Hussain Punjari, you also seen. Mohammad Ibrahim, Mughal, Shambhunath Mughal. Yes, sir. So you are okay. Shubham Kakad, Shubham Kakad. You all have to make your a separate notebook for design of steel structure. Okay, and all the assignments and all the project calculation you should write down on journal pages. Don't write on notebook. You have to purchase sheets, full imperial sheet, and you have to purchase the journal papers, all the assignments, and all the work you should write down on the journal papers. Tushar Gauli, show me pen and paper. Yogesh Shinde, Ziaul Samad. It should be remembered that once I will remove from this class, you will not able to join again. Okay? So I will going to remove Adnan Ahmad. Adnan Ahmad, are you there? I will remove you. Once I will remove you, you are not able to join again this meeting. Are you there, Adnan Ahmad? Okay, I have removed you. Ahmad Saudagar. Ahmad Saudagar. Are you there? Otherwise, I will remove you. Once I will remove, you are not able to connect this meeting. Ahmad Saudagar. So open your camera. Why you are not opening your camera? Mohammad Ibrahim. Mohammad Ibrahim. Are you there? आपसे अच्छे पहले दूसरे के बच्चे हैं, तुमसे अच्छा अटेंड करते हैं वो क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस. यू आर सिटिंग विद द पेन एंड पेपर एंड नोटबुक और बुक्स आर आल्सो. और आप लोगों को बोला जा रहा है इतने कैसे हैं आप इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में आ गए हैं, इतना नहीं समझता आपको किस तरह बात करना है, किस तरह ओपन करना है, कैमरा ऑन करना है. अगर इस तरह बिहेवियर रहेगा तो आपके असेसमेंट 0 मार्क्स मिलेंगे, बोल दे रहा हूँ. मुझको ऐसा लग रहा है आप कोई भी सीरियसली अटेंड नहीं कर रहे हो लेक्चर्स. आप जस्ट प्रेजेंट दिख रहे हो यहाँ पर, लेकिन यू आर नॉट प्रेजेंट. दैट्स व्हाई यू आर नॉट ओपनिंग योर कैमरा. You should open your cameras. Yogesh Shinde,
कैमरा ऑन करो। तुषार गौली, सुमित आहिरे, शुभम काकड़, open your camera on. All should open your cameras. You are wasting our time, huh? दो लोगों ने सिर्फ ओपन किया अभी। आप लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं है फैकल्टी का। यव समद, योगेश शिंदे, तुषार गौली, सुमित आहिरे, शुभम काकड़, शंभुनाथ मुगल, मोहम्मद इब्राहिम, गुलाम हुसैन, अंसारी यासिर। एटलीस्ट जबान से कुछ बोलो। कैसे टेस्ट देते हो, एग्जाम कैसे दोगे बिना कैमरे के? हेलो हाँ सर, ओपन है कैमरा। अंसारी यासिर नहीं है आपका? अभी अभी ओपन हुआ, ओके ठीक है। मोहम्मद इब्राहिम, ओके, शो मी योर पेन पेपर। सुमित आहिरे, Yes, sir. ओके, शो मी पेन एंड पेपर। शो मी योर सिटिंग विद द पेन एंड पेपर। ओके, जाओ समझ, सलीम, शो मी पेन एंड पेपर, ओके। Okay, now we will start your this design of structure, steel structure lab. It consists of four parts in your homework assessment or oral assessment, you can say, and it is depend on your overall working. Okay, so you should do all the work, homework, whatever I will assign to you and what were given in your syllabus, that is design of steel structural lab, that is 301009 under the Savitribai Phule Pune University. So this third year syllabus already shared with you on your group. Once again I will upload on your Google Classroom. The term one consists of a journal containing the following design, drawing and site visit report. So all the things you should write down on the journal paper and then bind it, and then you have to submit with your sheets all this work, whatever given to assign to you. You have to include all work, even the assignments also, and mini project also, and all the design calculation work, whatever you are given in the term work, and I will give to you. You have to complete regularly. आज मैं काम दिया, नेक्स्ट वीक सेम डे से पहले आपका काम होना चाहिए, उससे पहले आपने चेक करवा लेना चाहिए। मैं बार बार आपको नहीं बोलूँगा। Oral examination will be based on the term work, whatever you are completed, and your term work assessment will be continuous assessment and continuous I will judge. एक असाइनमेंट पहले लेक्चर में मैंने दिया था, अभी तक मेरे पास सिर्फ एक स्टूडेंट का आया है, जबकि उनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन अभी तक एक ही स्टूडेंट ने वो भी उन्होंने सबमिट किया है बस ऑन व्हाट्सएप। Other students, they are not taking seriously, they are not doing the work. Instruction for term work completion for design of steel structure lab 301009.
first student should purchase at least 8 full imperial sheet for hand drawn sheet. सबसे पहला काम ये करना है, मैं नहीं सुनने वाला कि सर शीट नहीं मिली. यू हैव टू परचेस, ऑनलाइन आप परचेस कीजिए या शॉप में जाकर परचेस कीजिए. बिफोर एनी लॉकडाउन नाउ एवरी शॉप्स आर ओपन. In daytime you can go and purchase and put your 8 sheets with you, and as work will be assigned to you, you should complete on time and you should submit within a week all the work. Student must carry drawing tools necessary for design of structured term of completion. It may be mini drafter, it may be your pencil, paper, rubber, sharpeners, and uh, compass. Everything should be with you, whatever needed for the drawing. Also, all the company equipment, it may be calculator, it may be measuring scale. All these things you should be kept with you when you are coming for the practical class or you are working at your home. Then you, all this equipment should be with you. All students must know that at least one drawing software for Tamwork parts 03 you should know. Okay. So any type of drawing software you should know. It may be AutoCAD, it may be other type of CAD. You can able to draw plan, section, sectional elevation in that. So you should know at least one drawing software for the completion of mini project in part 3 of your term work. After completion of gantry grid, a student should prepare calculation using a spreadsheet. Spreadsheet इसको बोलते हैं. स्प्रेडशीट हम जो एक्सेल में सॉफ्टवेयर है, ऐसे दूसरे कोई भी कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं. अदर देन एक्सेल आल्सो यू कैन यूज, इट इज फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट एनी अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और on a spreadsheet you can use to make a software on the design of gantry girder. It is a part of your term work submission part 2. Please remember all these things. All these things you should complete, and all the work you have to put in front of the external when he will coming for the oral or the online oral will be take place. So all students should be kept in mind. You should not take it easy. From now you will complete all the work regularly as it is given. Regular online checking of sheets and design calculation during the practical hours only. जिस तरह हमारे पास 4 प्रैक्टिकल आवर्स हैं, हर प्रैक्टिकल आवर्स में आपको दिखाना पड़ेगा. इसके अंदर बहुत से कैलकुलेशन में, सैंपल कैलकुलेशन में कर बताऊंगा और बाकी काम आपको खुद करना है. ड्राइंग शीट आपको खुद बनाना है. क्या बनाना है ड्राइंग शीट पे, आई विल गाइड टू यू. लेकिन यू हैव टू ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिकल आवर यू शुड सिट विद द ड्राइंग शीट्स एंड योर ड्राइंग बोर्ड एंड ड्राइंग टूल्स. You should remember that you will sit with the date of completion of sheets and design calculation will be after 1 week of your conduction of practical. आज जो प्रैक्टिकल मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जो परफॉर्म कर रहा हूँ, उसका कंप्लीशन 1 हफ्ते के बाद रहेगा. यानी 1 हफ्ते के अंदर आपको आपकी शीट बना लेना है. आपकी जो भी कैलकुलेशन है उसमें करना है, वो करना है और सबमिट करना है. इसी तरह असाइनमेंट मैं आपको अगर 7 तारीख को देता हूं तो नेक्स्ट वीक 14 तारीख से पहले आपके असाइनमेंट कंप्लीट रहना चाहिए, चेक हो जाना चाहिए. मैं बार बार ये बात रिपीट नहीं करूंगा. आपके मार्क्स कम होंगे सेशन में, असेसमेंट में, ओरल में, तो फिर आकर हमारे पास कंप्लेन नहीं करना है, कोई भी कंप्लेन नहीं करना है. बिकॉज योर असेसमेंट इज टोटली ऑन योर ओन वर्क, योर रेगुलरिटी, योर अटेंडेंस, your work, your punctuality, your attitude, all is observed for assessment of your term work in structure design lab. Okay, still structure design lab. You can upload your sheet on Google Classroom
in image or PDF file, when it will be asked. The physical practical hours in college that will be announced only a day prior, then physical checking will be carried out at the college. Please write proper name, roll number, class, batch number on your submissions. तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बाद में बोलना नहीं सर मेरी शीट किसी ने ले लिया. ये आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं. आप प्रॉपर पेन से नाम लिखेंगे, पेन से रोल नंबर लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, कोई नहीं आपकी शीट लेगा. कौन हिम्मत करेगा? लेकिन अगर आप पेंसिल से लिखेंगे तो कोई भी रब करके अपना नाम डाल सकता है. So it is your responsibility. You should take care of your material. We are not responsible for that. And whenever we will ask to submit the materials or your term work or your for oral, you should bring, you will submit, you will show to me. I will just check and all the material will retain with you. Instruction for term of completion. We have seen purchase, print, learning tools needed for design of steel structures, that is IS codes, steel tables, etc. We will start off next class or practicals. So you can purchase, you can print online available IS codes or steel tables, etc. So list of these codes are you can see in this IS 875 Part 1 for dead load, IS 875 Part 2 for live load, IS 875 Part 3 is for the wind load. These I am ticking. These codes are necessarily needed for your term work completion. Please make all this be present with you. That is IS 875 Part 1, Part 2, Part 3. Similarly, IS 800 2007. There are some corrections in IS 800 2007 that is given in BIS list of correction. All this soft copy already I am uploaded on your Google Classroom. So you should see there and you should read carefully and complete the task whatever assigned to you regularly on time. IS 808 is nothing but for the steel sectional properties are given already yesterday as shown you, and once again we will see in detail in coming hours. Then new code of IS 875 Part 3 2015 also I have shared with you. You can download or print, you can download or use soft copy, but it is permissible in examination. So I will request all of you IS 800 this and I list of correction this and IS 875 Part 3 all these and also steel table. This 4 item must be with you when you are going for design of the steel structure. So this one first number, second number, and third number. These codes are compulsory needed for guideline for design of your steel structure. This, without this, you can not able to complete your mini project work or cover completely. So you can take the screenshot of this IS codes. IS 75, Part 1, Part 2, Part 3. This list of correction, IS 800 2007, IS 8. All these I have already shared with you. Then there are practicals or term work having 4 part
in your assessment. You should remember that there is four part in your term work assessment, and you should remember that this subject, this design of steel structure lab, having uh, 2 credit, okay, and theory only 3 credit, and total this subject if you consider 5 credit is there. किसी भी सब्जेक्ट में आपको इतनी ज़्यादा क्रेडिट नहीं है, यू कैन टेक सीरियस एंड कंप्लीट ऑन दिस. Part 1 of your term of completion or practical completion is 4 full imperial size drawing sheet showing structural detailing of 16 sketches based on your syllabus, and all these 4 sheets should be hand drawn. All these 4 sheets should be hand drawn. Okay? So what you have to draw in sheet number 1, it is given here, and I will also explain in detail in coming after you will see. तो कितने स्केचेस आपको बनाना है? 16 स्केचेस बनाना है. एक शीट के आपको 4 पार्ट करना है. एक शीट पर 4 स्केचेस रहेंगे. 1, 2, 3 and 4. 4 सेक्शन आप करेंगे आपके शीट का, और चारों सेक्शन में जो भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर एक स्केच रहेगा. एक स्केच बोले तो जो आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पर 4 टाइप का रोल्ड स्टील सेक्शन दिया है, 4 टाइप के रोल्ड स्टील सेक्शन ये एरिया में आपको बनाना रहेगा. इसमें यहाँ 3 टाइप के जॉइंट्स दिए हैं, तो ये एरिया में 3 टाइप के जॉइंट आपको. ओके, ये स्केचेस रहेंगे, बहुत डायमेंशन में नहीं रहेगा. हियर आल्सो टाइप्स ऑफ जॉइंट दिए, 3 स्केचेस आप 3 स्केचेस दिए हैं, इसमें कंप्लीट करना है. और यहाँ पर ब्लॉक शेयर फेलियर के 2 टाइप दिए हुए, प्लेट टू प्लेट कनेक्शन, एंगल टू गसेट प्लेट कनेक्शन. तो ये 4 पार्ट को आपको कंप्लीट करना है ना. और इसका डेट ऑफ सबमिशन, जैसे आज का डेट है 10 जुलाई 2021 इज टुडे. 14 जुलाई से पहले आपको कंप्लीट करना है. यू हैव टू कंप्लीट बिफोर 14. तो बिफोर before 14 July, you have to complete this sheet number 1. Okay. Then the part 2 of your syllabus, that is design of steel structure, is a design of industrial building, and 3 sheets you have to draw hand drawn. कितनी शीट है? 3 शीट आपको हैंड ड्रॉन है. पहले कितनी शीट हुई? 4 शीट हैंड ड्रॉन. उसके बाद इसमें कितनी शीट बनाना है? 3 हैंड ड्रॉन, 3, या फिर अगर आप बढ़ाए तो 4 शीट भी हो सकती है. तो इस तरह टोटल कितनी हैंड ड्रॉन शीट आपको होगी? 7 और 8. तो डिजाइन ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इंक्लूड roof trusses, design of purlin, bracing, gantry girder, column bases, connections, analysis of truss by using suitable software, and cross-check manually. Use spreadsheet may be designed for gantry girder. गैंट्री गटर डिज़ाइन आप करने के बाद उसको एक्सेल शीट में भी बनाना है. and you draw 3 full imperial size hand drawn drawing sheet present the drawing details. So in this DSS design of steel structure,
is part 2 of your term 1. Okay. The part 2 consists of totally you have to design an industrial building. You have to design the industrial building. इसमें क्या क्या है? पहला रूट ट्रस है, पर्लिन है, ब्रेसिंग्स है, गैंट्री गर्डर है, कॉलम बेस है, कनेक्शंस है। ये सब डिजाइन आपको करना है तो ही आपके एमिनो प्रोजेक्ट कंप्लीट। इसके लिए हमको 4 का ग्रुप लगेगा। कितना ग्रुप लगेगा? 4 स्टूडेंट। तो प्रोजेक्ट जो मिनी प्रोजेक्ट है आपका, ये मिनी प्रोजेक्ट है ना। पार्ट 2 क्या है? ये आपका मिनी प्रोजेक्ट है। मिनी प्रोजेक्ट is not working good. I am writing मिनी प्रोजेक्ट में जो बैच रहेगा स्टूडेंट का, 4 स्टूडेंट का बैच रहेगा। ओके। और अगर कहीं 4 स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तो 3 स्टूडेंट भी चल सकते हैं। अगर कोई 2 स्टूडेंट बोलेगा सर हमारा बैच अलग चाहिए, तो 2 स्टूडेंट भी कर सकते हैं। कोई बोलता है कि मैं इंडिविजुअल करूंगा सर मेरा काम, वो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट 4 का ग्रुप रहना चाहिए। और 5 का भी रहा तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम अगर 4 का रहा तो दैट विल बी यानी बेस्ट। ओके। so we will form the group as we will issue the roll call list. As we will issue the roll call list, we will make a project group. अब डिजाइन ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो आपकी है, इसमें 3 शीट हैंड डाउन क्या क्या रहेगा, क्या क्या आपको उसके अंदर बनाना है, क्या क्या काम आपको करना है, दिस इज एक्सप्लेन्ड हियर। शीट नंबर 5 जो रहेगी, देखो शीट नंबर 1 क्या थी, अभी हम लोग ने देखा। शीट नंबर 1 कितनी शीट हैंड ड्रॉन है? समवर्क पार्ट ए जो है, आज है 10 तारीख। तो समवर्क पार्ट आपका जो प्रैक्टिकल है पार्ट 1, पार्ट 1 में क्या करना है आपको? पार्ट 1 में करना है तो शीट बनाना है आपको हैंड ड्रॉन। is not working properly, please change the name. तो समवर्क पार्ट 1 में आपको
हैंड ऑन चार्ज शीट बनाना है। हैंड ऑन कितनी शीट बनाना है? 4 शीट। ओके, 4 शीट में बनाना है। 4 शीट के बाद यानी शीट नंबर 1, 2, 3 और 4। इसके बाद 4 शीट के बाद 5वीं शीट आपकी जो रहेगी वो रहेगी पार्ट 2 की। पार्ट 2। ओके, तो पार्ट 1 में कितनी शीट है? 4 शीट है ना। तो 4 शीट पे कितने स्केचेस बनाना है आपको? 16 स्केचेस बनाना है। और क्या क्या बनाना है ये मैं आपको दूंगा। कितने बनाना है? 16 स्केचेस बनाना है। हर एक पे कितने स्केच रहेंगे? 4, 4, 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16। उसके बाद आपको क्या करना है? पार्ट 2 में आपको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग डिजाइन करना है। इसमें हैंड ऑन कितनी शीट है? अभी मैंने आपको बताया कितनी है? 3 शीट है। शीट नंबर 5, शीट नंबर 6, शीट नंबर 7। शीट नंबर 5, 5, 6 और 7। अब इसमें क्या क्या बनाना है आपको? शीट नंबर 5 में एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बाय ग्राफिकल मेथड एंड कैलकुलेशन ऑफ मेंबर फोर्सेस ग्राफिकल। तो यहाँ पर की प्लान फ्यूजन ट्रस बनाना है, जो भी ट्रस आपने चूज किया इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए। हेड लोड एनालिसिस आपको करना है, लाई लोड एनालिसिस करना है, विंडो एनालिसिस करना है, और ये सब ग्राफिकल मेथड से करना है। ये शीट नंबर किस पे आएगी? ये सब काम आपका आएगा शीट नंबर 5 पे, और वो भी हैंड ड्रॉन। क्या रहेगा ये? हैंड ड्रॉन रहेगा। ये ख्याल रखना है आपको। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इट शुड बी हैंड ड्रॉन 3 शीट्स। ये शीट नंबर 5। शीट नंबर 6 में आपको एक तो ये शीट नंबर 4 में विंड लोड नहीं आया तो विंड लोड शीट नंबर 6 में कर देंगे। और वहाँ पर शीट नंबर 6 में आपको टेबल बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ मेंबर फोर्सेस बाय डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन। लोड कॉम्बिनेशन करके टेबल्स बनाना है, और यू शुड राइट डाउन एंड देन कॉम्बिनेशन
बिकॉज वाई वी आर गोइंग फॉर लोड कम्युनिकेशन में जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन है उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चरल नंबर जो भी है वो हम क्या करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। फिर शीट नंबर 7 पर जो डिज़ाइन ऑफ गैंट्री गर्डर आपने किया है वो डिज़ाइन ऑफ गैंट्री करना है। जो कॉलम आपने डिज़ाइन किया है वो कॉलम को भी बनाना है शीट नंबर 7 पे। यू कैन एडजस्ट ऑल ड्राइंग्स इन मिनिमम 3 और 4 शीट। मैंने 3 शीट यहाँ बोला है और अगर हो सके तो आप 4 शीट पे भी कंप्लीट कर सकते हो अगर आपको जगह नहीं मिलती है, क्योंकि इसका डिटेलिंग भी आपको बताना है। जो तो डिज़ाइन ऑफ गैंट्री गर्डर और डिटेलिंग ऑफ कॉलम ये आपको करना है डिज़ाइन शीट नंबर 7। तो जो प्रैक्टिकल पार्ट 2 है आपका, उसमें क्या है, डिज़ाइन ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग डिज़ाइन करने के बाद कितने शीट्स बनाना है आपको, 3 शीट बनाना है। डिज़ाइन कैलकुलेशन जर्नल पेजेस पे लिखना है और शीट्स आपको बनाना है। सैंपल डिज़ाइन मैं लेक्चर प्रैक्टिकल आवर्स में ही कंप्लीट करूँगा। आप लोगों ने रेगुलर प्रैक्टिकल्स ज्वाइन करना है, जो मिस करेंगे वो मिस हो जाएंगे, है ना। और जो रेगुलर काम करेंगे उनका रेगुलर असेसमेंट होगा, दे विल गेट गुड मार्क्स। तो ये हो गया हमारा जो पार्ट 2 ऑफ योर टर्म वर्क कंप्लीशन है, प्रैक्टिकल वर्क है। इसी तरह पार्ट 3 है प्रैक्टिकल डिटेल्स ऑफ योर डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। पार्ट 3 डिज़ाइन ऑफ प्लेट गर्डर है। प्लेट गर्डर आपको डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन ऑफ वेटेड प्लेट गर्डर, उसका क्रॉस सेक्शन किस तरह फिक्स करते हैं वो आएगा। स्टिफनर और कनेक्शन डिज़ाइन कैसे करते हैं वो आएगा। और उसके बाद 1 फुल इंपीरियल साइज ड्राइंग शीट आपको बनाना है बाय यूजिंग एनी सूटेबल सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपको हैंड ड्रॉन नहीं है, आपको यहाँ पर जो बनाना है शीट नंबर 8, that is design of plate girder, it should be on by using any drawing software. So sheet number is draw plan elevation section for plate girder design, whatever design you have done उसी के डिज़ाइन के बेस पर आपको आपका प्लेट गर्डर का पूरा ड्राइंग सॉफ्टवेयर में बनाना है। हैंड ड्रॉन एक्सेप्टेबल नहीं है। ऊपर की चारों शीट जो है टर्मवर्क पार्ट 1 में और टर्मवर्क पार्ट 2 में क्या था कि आपको हैंड ड्रॉन शीट थी, है ना। टर्मवर्क पार्ट 1 में हैंड ड्रॉन शीट 16 स्टेजेस पे थी। टर्मवर्क पार्ट 2 में हैंड ड्रॉन 3 शीट थी आपकी। इस तरह टोटल 7 शीट्स आपको हैंड ड्रॉन बनाना है। तो कितनी शीट हैंड ड्रॉन हो गई, हैंड ड्रॉन अगर मैं बोलता हूँ तो हैंड ड्रॉन टोटल शीट हो गई 4 + 4 that is 8। और if you adjust in 3 sheets तो 4 + 3 nothing but 7 sheets। Okay, so 7 sheets are total, they are hand drawn। So 7 sheets you have to draw by hand। Okay, other sheets
that last sheet, that is sheet number 8, you have to draw by using suitable software to complete your homework submission. Okay, so this should be remembered. तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो फिगर आप हैंड ड्रॉन बनाएंगे प्लेट गर्डर के, इसमें प्लान प्लेट गर्डर डिजाइन बाय योर ग्रुप, एलिवेशन ऑफ प्लेट गर्डर शोइंग डिफरेंट प्लेट एलिमेंट्स, तो प्लेट एलिमेंट्स में मिलकर प्लेट गर्डर बनता है, डिफरेंट सेक्शन शोइंग लार्ज व्यू ऑफ द प्लेट एलिमेंट्स you have to make on by using any software. Now term work part 4 is term work part 4 for design of your steel structure, having a 2 site visits and both reports will be attached with your work. तो 2 साइट विजिट हमको करना है, कहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर्स देखना है और साइड रिपोर्ट आपको बनाना है. तो 2 कंपल्सरी साइट विजिट्स बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्टील स्ट्रक्चर एंड वेल्डेड प्लेट गर्डर रिपोर्ट शुड कंटेन स्ट्रक्चर डिटेल्स विथ स्केचेस. तो आप जो भी साइट पर देखेंगे, कौन से स्ट्रक्चरल पार्ट देखे, अपने कॉलम देखे, कॉलम बेसिस देखे, बीम्स देखे, जॉइस्ट देखे, हाँ, या गर्डर्स देखे, तो उसके ऊपर आपको रिपोर्ट बनाना है विथ स्केचेस ड्राइंग के साथ, और ये जर्नल पेजेस पर बनाना है रिपोर्ट. तो आपको 2 क्रेडिट है ये सब्जेक्ट में, और ये 2 क्रेडिट हासिल करने के लिए आपको 4 पार्ट में काम करना है. 4 पार्ट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया. 4 पार्ट क्या क्या है. पहला पार्ट जो है हमारा 16 स्केचेस on 4 sheets, 4 sheets, and the sheet should be full imperial. Sheet should be full imperial sheet. Full imperial sheet. एंड टर्म ऑफ पार्ट 2 में मैंने आपको बताया क्या करना है कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग डिजाइन करना है. डिजाइन ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, डिजाइन ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कितनी शीट बना है इसमें? इसमें 3 शीट बना, इसमें 4 शीट. टोटल हैंड ड्रॉन कितने हुए? ये दोनों जो हैंड ड्रॉन है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हैंड ड्रॉन. पार्ट 3 में आपको क्या करना है? प्लेट गर्डर डिजाइन करना है. ओके, और इसकी एक शीट रहेगी, लेकिन वो शीट क्या करके बनाना है आपको? सॉफ्टवेयर में. सॉफ्टवेयर यूज करके. ओके, तो लाइक यू टू कंप्लीट योर टर्म ऑफ कंप्लीशन. अब पार्ट ए में आज मैं आपको देता हूँ शीट नंबर 1. पार्ट ए नहीं, पार्ट 1 हम बोलते हैं. पार्ट 1 में मैं आपको एक शीट देता हूँ. आपको एक शीट के कितने सेक्शन करेंगे?
आपकी जो शीट नंबर 1 है, आपकी जो शीट है, शीट नंबर 1 है, तो एक शीट के कितने पार्ट करेंगे? आपकी ये फुल इंपीरियल शीट इस तरह होती है। और यहाँ पर आपका छोटा सा टेबल होता है जहाँ पर आपके रोल नंबर, नाम वगैरह लिखे जाते हैं। तो आपके शीट के आप क्या कीजिए कि कोई भी 4 पार्ट कीजिए और फिर हर पार्ट में एक स्केच बनाइए जो दिया है। स्केचेस 1, स्केचेस 2, स्केचेस 3 और 4। Likewise, you distribute one sheet into 4 सेक्शन और हर सेक्शन में 4 टाइप के आपके जो बनाने का बोला जाएगा वो आपको बनाना है। ओके, तो क्या क्या बनाना है शीट नंबर 1 में मैं आपको बताता हूँ। शीट नंबर 1 में आपको बनाना है टाइप्स ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन विथ फुल लेबलिंग। टाइप्स ऑफ क्या बनाए? रोल्ड स्टील सेक्शन। रोल्ड स्टील सेक्शन आज ही हम लोग ने देखा है ना। और ये टाइप ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन में क्या क्या बनाना है आपको? पहला है रोल्ड स्टील आई सेक्शन, मॉर्निंग में आई सेक्शन हम लोगों ने देखे। दूसरा है रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, इस तरह का जो रहता है सेक्शन, आई सेक्शन, आई टाइप का। हेलो। और इसी तरह रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन आपको बनाना। बोलिए। हेलो, हेलो। हाँ बोलो बेटा। सर मैं बोल रहा था उसका वो क्या बोलते हैं डिस्टेंस नहीं ना, डायमीटर वगैरह। आपको हेलो। स्केचेस बनाना है लेकिन लिखना है आपको नोमेनक्लेचर के। सर विदाउट डायमीटर ना? हाँ, विदाउट, यानी कोई ऐसा डायमेंशन लेकर नहीं बनाना है, स्केचेस ओके रहेगा। सर। ये और चार सर शीट एक जो रहेगी आपकी, 4 शीट जो रहेगी विदाउट डायमेंशन रहेगी। लेकिन ऐसा भी ना हो कि थिकनेस ऑफ वेब इतनी ज्यादा है कि लग ही नहीं रहा है वो आई सेक्शन में, या फ्लैंज इतना छोटा बना है कि समझ में नहीं आ रहा है सेक्शन। डोंट नहीं डू सर, दैट। अपना रेगुलर रेगुलर। तो स्केचेस है, यहाँ पर आपको डायमेंशन के हिसाब से नहीं बनाना है, डायमेंशन कुछ भी नहीं लगेगा, है ना। लेकिन वो दिखना चाहिए आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, रोड सेक्शन। तो ये एक शीट का पहला पार्ट है, पार्ट 1, शीट नंबर 1 का पहला पार्ट, है ना। ओके सर। दूसरे पार्ट में रहेगा, जैसे पहला पार्ट बोले तो ये पहला पार्ट मैंने अभी बताया आपको। यहाँ पर आपको ये चारों सेक्शन, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, टी सेक्शन बनाना है और उनके नाम भी लिखना है। उनके नाम जो रहते हैं, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ वेब, डेप्थ ऑफ वेब, width of flange, radius at root, radius at toe, all these things you have to write down, है ना। इसके बाद दूसरा जो आपका रहेगा शीट नंबर 1 पे, तो शीट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ अभी ना। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, लैब ज्वाइंट्स विथ बोल्टेड कनेक्शन, है ना। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, लैब ज्वाइंट विथ बोल्टेड कनेक्शन आपको बनाना है। ओके, लैब ज्वाइंट बोले तो मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई 2 प्लेट एक के ऊपर एक विदाउट एडिशनल प्लेट अगर हम ज्वाइन करते हैं तो दैट ज्वाइंट इज कॉल्ड एज लैब ज्वाइंट। तो ये लैब ज्वाइंट है ना। इस तरह हमको लैब ज्वाइंट करना। डबल बोल्टेड लैब ज्वाइंट, जिगजैग बोल्टेड। अब मैंने आपको बोला कि आप देखेंगे कैन से हियर रोड स्टील सेक्शन, कौन सा सेक्शन है? रोल्ड स्टील
आई सेक्शन में, है ना। तो यहाँ पर आपको सब लिखना है, इस तरह आई सेक्शन बनाना रहेगा, यहाँ लिखना रहेगा। क्या लिखना है, जैसे यहाँ पर अगर कैपिटल टी है, सॉरी, यहाँ कैपिटल टी है ना। यहाँ पर कैपिटल टी इज द थिकनेस ऑफ फ्लैंज, यानी फिगर बना के इस तरह लिखना है। एंड दैट शुड नॉट बी, दैट शुड बी इन 3 mm लाइन। यू हैव टू ड्रॉ 3 mm लाइन और उसके अंदर आपको लिखना है। बराबर काम है ना। आपने 3 mm का लाइन बनाया और उसमें आपको लिखना है टी इज, टी इज थिकनेस ऑफ लाइन। ये करिए। यहाँ पर आप देखिए आई सेक्शन है। इफ यू सी हियर a capital T, T is nothing but, you can write down thickness of flange। ये फ्री हैंड नहीं लिखना है आपको। फ्री हैंड भी अगर आप लिख रहे हो तो 3 mm की लाइन एकदम बनाना है और उसके अंदर लिखना है। इसी तरह व्हाट इज स्मॉल टी, यू शुड राइट डाउन थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ वेब। ओके, व्हाट इज कैपिटल डी, डेप्थ ऑफ सेक्शन, डेप्थ ऑफ सेक्शन। मैं फ्री हैंड लिखूँ आपको इस तरह, व्हाट इज बी, कैपिटल बी और बी एफ, nothing but width of flange, width of flange, okay। R1
radius at root R2 radius at 4. So this you have to write down for each figure. So I write here for the I section, है ना. इसी तरह आपका चैनल सेक्शन है. चैनल सेक्शन के लिए भी इस तरह आपको पूरा लिखना पड़ेगा शीट पर ही. कहाँ पर? आपके यही एक पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट. ओके. देन सेकंड पार्ट, टाइप्स ऑफ योर ज्वाइंट. टाइप्स ऑफ ज्वाइंट आपको दिया. सेकंड पार्ट क्या? टाइप्स ऑफ ज्वाइंट में क्या है? पहला क्या दिया हुआ है? लैप ज्वाइंट. लैप ज्वाइंट किसको बोलते हैं? जब दो प्लेट एक के ऊपर एक ज्वाइंट होती है, लैप ज्वाइंट. अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ फिगर लैप ज्वाइंट का, लैप ज्वाइंट, so if two plates are connected by lapping each other, so this is called as lap joint. अब लैप ज्वाइंट में क्या क्या बनाने के लिए बोला है आपको? यहाँ पर देखिए, पहला आपको बोला है लैप ज्वाइंट में बनाने के लिए सिंगल बोल्टेड लैप ज्वाइंट. ये सिंगल बोल्टेड लैप ज्वाइंट पहले हो गया. अगर इसका अपन प्लान बनाएंगे तो ये ऊपर वाली प्लेट ऊपर दिखेगी, नीचे प्लेट यहाँ डॉटेड दिखेगी, फिर यहाँ कंटिन्यूस दिखेगी, और हमने यहाँ पर बोल्ट से सिंगल बोल्टेड लैप. डबल बोल्टेड लैप ज्वाइंट यानी सेम टाइप ऑफ फिगर रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर अगर आप मैं बनाता हूँ डबल बोल्टेड लैप ज्वाइंट, तो इट विल बी लुक like this. This is one of the plate. This is the second plate. Okay. And this the line of bolts are 2. तो इसको क्या बोलेंगे? डबल बोल्टेड लैप ज्वाइंट. इसका अगर प्लान हम देखेंगे तो प्लान इस तरह बनेगा. टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, आपकी बॉटम प्लेट, और यहाँ पर बोल्ट जो है आपका एक लाइन में नहीं है, दो लाइन में है. इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? डबल बोल्टेड. दिस इज नथिंग बट डबल बोल्टेड. ओके. सिमिलरली थर्ड फिगर आपको सेकंड में दिया है, थर्ड दिया है जिगजैग बोल्टेड लैप ज्वाइंट. अब इसी तरह की फिगर है, ये टू प्लेट्स आर कनेक्टेड. तो अगर मैं एक प्लान बनाता हूँ, ये प्लान है मेरा, है ना. तो दो प्लेट को मैं ज्वाइन अगर करता हूँ, जिगजैग बोल्टेड बोले तो यहाँ पर एक बोल्ट है, दूसरा बोल्ट यहाँ, तीसरा यहाँ है, तो चौथा यहाँ. तो दिस इज शोइंग अ जिगजैग पैटर्न इन प्लान. लेकिन आप एलिवेशन में देखेंगे तो एलिवेशन में आपका बोल्ट इसी तरह दिखेगा, है ना. टॉप की प्लेट ये, बॉटम की प्लेट, सेक्शन इसी तरह आपका दिखेगा जिगजैग बोल्टेड.
ओके, फिजिक्स वोल्टेज हमको कहाँ मालूम पड़ रहा है, प्लान। इसके प्लान, सेक्शन और सेक्शनल एलिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसके बाद तीसरा जो है, अभी मैं आपको और अच्छी तरीके से बताता हूँ लैब ड्राइंग क्या होते हैं। तो you will see on internet also lab drawings. In what we are reading, steel structure. स्टील स्ट्रक्चर में लैब ड्राइंग कैसे होते हैं, इमेजेस देख सकते हैं। ओके, ओपनिंग, प्लीज वेट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? गोल का डिटेल जब पूछा जाएगा तो गोल का डिटेल आपको देना, जो पूछा जा रहा है वो करना है ना। यू कैन सी द लैब ड्राइंग। देखिए, इट इज विजिबल टू यू, सिंगल वोल्टेज लैब जॉइंट, डबल वोल्टेज लैब जॉइंट दिख रहा है आपको? दिस इज द सिंगल वोल्टेज लैब जॉइंट, है ना? इट इज विजिबल टू यू, आई थिंक सो। लेफ्ट साइड का जो है सिंगल वोल्टेज है, राइट साइड का है डबल वोल्टेज, दो लाइन है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज कॉल्ड एज लैब जॉइंट। ओके, तो इसी तरह फिगर में आपको बनाना है। ओके, उसके बाद शीट नंबर 1 का थर्ड जो है वो बनाना है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पर जॉइंट्स विद वोल्टेज करेक्शन, है ना? अभी तक हम लोग ने क्या देखा, लाइव जॉइंट। बट जॉइंट कैसा रहता है, व्हेन टू प्लेट्स आर बटिंग ईच अदर, बटिंग ईच अदर यानी टचिंग ईच अदर। अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये अगर दो प्लेट को मैं कनेक्ट करूंगा, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इफ दे आर टचिंग ईच अदर और उसको ज्वाइन करेंगे हम एडिशनल प्लेट से, एडिशनल प्लेट में लगाऊंगा ऊपर और नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे, बट जॉइंट। और अगर मैं यहाँ पर एक बोल्ट से ज्वाइन करता हूँ तो इसको बोलेंगे सिंगल, डबल कोर सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट। डबल कोर बोले तो ये ऊपर भी कवर प्लेट है, नीचे भी डबल कवर है, तो फर्स्ट और सेकंड यानी दो कवर प्लेट है। और इसी तरह अगर मैं आपको
प्लेट मैं ज्वाइन करूँ, अगर सिर्फ एक कवर प्लेट उस पर लगाऊं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगल कवर प्लेट। और वहां पर एक बोल्ट अगर मेरा है तो सिंगल कवर सिंगल बोल्टेड बट ज्वाइन। लेकिन अगर मैं क्या करूं, उसमें एडिशनल बोल्ट लगा दूं, दोनों तरफ एक एक और बढ़ा दूं, यहाँ पर एक दो, यहाँ पर एक दो, तो क्या हो गया? सिंगल कवर डबल वोल्टेज बट ज्वाइंट हो गया, है ना। तो इस तरह आपको बनाना है, सिंगल कवर सिंगल वोल्टेज बट जाए, डबल कवर सिंगल वोल्टेज बट ज्वाइंट, डबल कवर डबल वोल्टेज। अब डबल कवर डबल वोल्टेज बोले तो कवर तो हो जाएगा। ये मेरी प्लेट है, प्लेट 1, और ये मेरी प्लेट 2 है, और इसको दो कवर प्लेट से मैं ज्वाइन करूंगा तो ये हो जाएगा डबल कवर। और दो बोल्ट अगर मैं डालूंगा तो ये डबल बोल्टेड भी हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं दो बोल्ट यहाँ पर अगर लगा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगी? ये डबल कवर डबल वोल्टेज, है ना। दो लाइन बोल्ट के मैंने लगाया, समझ में आया? तो लाइक वाइज यू कैन ड्रॉ दिस शीट्स ऑन योर, समझ में आया? तो इस तरह ये सिंगल कवर सिंगल वोल्टेज plates, two plates. I will join the single cover, single bolt. Then this is single cover, single bolted butt joint, double cover, single bolted butt joint. ये ऊपर जो हम लोग ने बनाया, then double cover, double bolted joint ये बनाया, और this one is nothing but single cover, double bolted butt joint. Why butt joint? Because both the plates they are touching each other. They are not overlapping each other. That's why this joint is called as butt joint. Okay? तो आपको प्रैक्टिकल नंबर 1 में जो शीट नंबर 1 है, ये 1 2 3 4 आपको बनाना है। चौथा क्या है? प्लेट टू प्लेट कनेक्शन ब्लॉक शेयर फेल्योर और एंगल टू गसेट प्लेट कनेक्शन इन टेंशन मेंबर ब्लॉक शेयर। अगर आप आपका स्टील टेबल आईएस कोड देखेंगे तो आईएस कोड में सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है ना। सिंपल एग्जांपल हम देखेंगे आईएस कोड में कहाँ पे। मैं अगर आईएस कोड 800 खोलता हूँ, आईएस 800 2007।
Can see here the zigzag bolted example on page figure number 5. Huh? Now see here the block shear failure. Na? Block shear failure. In plate to plate, 7A is plate to plate and 7B is the angle to plate. अगर आप लोग इस तरह अगर हम ड्राइंग बनाते ब्लॉक शेयर फेलवर तो ब्लॉक शेयर फेलवर शेयर फेलवर इन प्लेट ये दो प्लेट है they are connected with the board and टेंशन मेंबर अगर ब्लॉक शेयर फेलवर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कैसा होगा ये मैं बताता हूँ आपको कि जो वीकर प्लेट रहेगी अगर ये 6 mm की है इधर की और ये 8 mm की है तो कौन सी ब्रेक होगी डेफिनेटली स्मॉलर थिकनेस वाली दैट इज 6 mm वाली ये ब्रेक होगी कैसे ब्रेक होगी 6 mm वाली प्लेट दैट वी हैव टू गो हियर that will break and the pattern will be the break pattern will be so this is nothing but block shear failure in block this plate number 2 अगर हम बोलते हैं plate number 1 इस तरह ये इसका block shear failure similarly if angle section is connected this is angle section and it is connected with the gusset plate I will draw here two bolts it is connected with the gusset plate this is the gusset plate generally connected in the member truss so gusset plates having thickness of 12 mm thickness of angle is 8 mm तो क्या ब्रेक होगा डेफिनेटली एंगल विल ब्रेक एंगल विल रिमेन तो किस तरह ब्रेक होगा तो ये पैटर्न जो बनेगा इस तरह बनेगा तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ इट विल ब्रेक फ्रॉम हियर एंड हियर तो ब्लॉक शेयर फेलियर अगर एंगल को आप देखेंगे तो ये एंगल जो है ये एंगल ये रह जाएगा गसेट प्लेट के साथ ओके और एंगल में जो फेलियर होगा आपका ये एंगल आपका बाहर आ जाएगा इस तरह that is nothing but block shear failure in angle and this तो आज आपको समझ में आ गया कि this is your practical 01 file only practical 1 so this is the block shear failure and today's is the practical 1 practical 1
ओके, तो आपको पहली शीट में क्या क्या बनाना है ये आपको समझ में आ गया। So this is nothing but I have shown you the block shear failure in plate and angle to plate. In IS code also this figure is given. You can use that also. Okay, so this figure is on page number 34. You can remember the page and you can draw. So in sheet number 1, from work submission you have to complete all this part. Okay, sheet number 1A is cold steel I section, channel section, angle section, T section, and their properties as we have discussed here. And then second figure will be the types of lap joint. The two plates are overlapping each other, then the joint is lap joint. ये भी किस तरह बनाना है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसी तरह बट ज्वाइंट शीट नंबर 1 में थर्ड जो पार्ट है टाइप्स ऑफ ज्वाइंट में बट ज्वाइंट, ये फिगर्स आपको बनाना है। इसी तरह शीट नंबर 1 में फोर्थ फिगर जो है ये ब्लॉक शेयर फेलियर, ये आपको बनाना है, दैट इज द टर्म। तो इतना काम आपको होमवर्क सबमिशन के लिए करना है। ओके, कोई डाउट है टर्म सबमिशन में तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है आपको पूछना है क्लास विथ मी, किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। आपका आवाज नहीं है करवानी। बोलिए अभी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, शीट कब तक जमा करवानी है? ये फर्स्ट मतलब कब तक चेक करवानी है? नेक्स्ट वीक से पहले 14 तारीख से 14 तारीख से पहले सर। आप बना के मुझको गूगल जो क्लासरूम है उसमें अपलोड कर दीजिए। ओके सर। आई विल क्रिएट नाउ और गूगल क्लासरूम एंड आई विल शेयर क्या क्या करना है। और शीट नंबर 1 उस पर आप लोग इमेज फाइल या पीडीएफ फाइल करके अपलोड कर दीजिए, या फिर फिजिकली अगर आप आते हैं तो चेक करवा दीजिए कॉलेज में। लेकिन मैं मॉर्निंग में सिर्फ 12:30 बजे तक रहता हूँ कॉलेज में। 12:30 1 बजे। ओके सर। आई एम कमिंग 8:30 और 12:30 तक आप लोग आइए अगर कुछ काम हो तो, और अदरवाइज यू कैन अपलोड ऑनलाइन, नो नीड ऑफ कमिंग। ओके सर। ओके सर। Any other question? नो सर। Anybody? Sir Yasir, Zainab, Tushar. हेलो सर हाँ बोलिए। सर एक शीट पे ही मतलब 16 स्केचेस बनानी है। एक शीट पे 16 में, एक शीट में 4,
एक शीट पर 4 स्केच, 4 शीट पर 16 स्केचेस बनाए। ओके सर, डन। हेलो सर, शीट वन पे मतलब शीट वन पे पार्ट वन का वन ही करने का है क्या? शीट नंबर वन का वन, शीट नंबर 1 का चारों करना है। मतलब वो कौन सा अपना सेक्शन है, वो खाली सेक्शन ड्रा करने के शीट नंबर वन पे? नहीं 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 भाई, वो तो सिर्फ पार्ट 1 है, चारों हाँ 4 सर, स्केचेस। मतलब एक शीट के 4 पार्ट करके उसको एक नंबर हाँ देके खाली हाँ, एक सिंगल बॉक्स में सेक्शन करने और का। ये और चारों सेक्शन और उसका पूरा नाम वो लिखना है। हाँ, और सर समझे? सेकंड शीट के ऊपर वो जॉइंट जॉइंट ड्रॉ करने का है क्या? उसी शीट पर करना है मेरे भाई, ये अभी पहली उसी शीट शीट का पर? बताया हूँ। ओके ओके सर, ओके। ये पहली शीट पर ही बनाना है। एक सेक्शन में 4 ओके ड्राएंगे, पहला, दूसरे सेक्शन में 3 ड्राएंगे, तीसरे सेक्शन में 3 है, चौथे सेक्शन में 2 है। पहला है ओके सर। आपका रोल्ड स्टील सेक्शन, दूसरा है आपका हाँ, लैब ज्वाइंट विद बोल्टेड कनेक्शन, तीसरा है बट ज्वाइंट विद बोल्टेड कनेक्शन, है ना। उसमें भी सिंगल कवर सिंगल बोल्ट, डबल कवर सिंगल बोल्ट, फिर डबल कवर डबल बोल्ट। इसी तरह ब्लॉक शेयर फेल्यूर इन प्लेट टू प्लेट, ब्लॉक शेयर फेल्यूर एंगल टू प्लेट, है ना। इस तरह ओके ये, सर। हाँ, ये सब बनाएंगे तो आपकी एक शीट कंप्लीट होगी, है ना। ओके सर, ओके 16 ओके स्केचेस बोले तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ 16 नंबर ऑफ स्केचेस आर देयर, है ना। रोल्ड स्टील सेक्शन में दुनिया भर के सेक्शन है, वो एक स्केच कहलाएगा। ओके, लैब ज्वाइंट में आप 4-5 टाइप के लैब ज्वाइंट बना सकते हैं, है ना। इसी तरह बट ज्वाइंट और इसी तरह ब्लॉक शेयर, ठीक है। दैट कंसेप्ट यू कैन अंडरस्टैंड। आई विल शेयर वन सैंपल शीट, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ओके पुरानी सर। शीट को कॉपी मत करो प्लीज। हाँ यार, अगर किसी ने रॉन्ग किया है, आपने रॉन्ग नहीं करना है। डोंट कॉपी एज इट इज, यू विल ड्रॉ योर ओन शीट्स। ओके, ओके एनी अदर क्वेश्चन?